हाय, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉट। बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन है बट विल सी अ बेटर ऑप्टिमाइज वर्जन इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। So before moving forward, let me introduce you to Newton School. Newton School is an online platform which trains you to start a tech career. It is meant for students, working professionals and also for women with no tech background. It has partnership with more than 300 companies as you can see on the screen. So let's see how their placement program works. Newton School first trains you for 6 months and helps you becoming an amazing full stack developer. Once this is done, it makes sure that their students get placed in some of the top-notch companies in the country. For that, they have placement tie-ups with almost every major company in the country. But the best part is, all of this is completely free of cost until and unless you get placed with a minimum CTC of 5 lakh rupees. Yes, you heard it right. It's completely free. As you can see, it's zero fee till placement. So, what you're waiting for? Do go and check their website. All the links are in the description. So, as you can see, the problem statement is check if n is prime or not. So, कैसा फ्लो रहने वाला है इस पूरे वीडियो में? फ्लो बहुत ही सिंपल सा है. We'll start with the brute force approach or the school method and then we'll gradually try to optimize that method. So, let's see now. सबसे पहले समझते हैं प्राइम नंबर होता क्या है. Well, prime number is a number which is either divisible by itself or 1. So आप बोल सकते हैं कि इसके सिर्फ दो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, 1 and the number itself. So स्कूल मेथड क्या था इसका? Let's see that now. Let's say मुझे अगर चेक करना है कि 5 is prime or not, तो मैं क्या कर सकता हूँ? I'll start with 1. So मैं क्या करूँगा इसके लिए? What will be my approach? I'll take 1 and I'll divide with 5 and see whether I get remainder 0 or not. So 1 is a divisor for every number, so it's very trivial. Let's go to 2 now. 2 divide करता है 5 को? नहीं करता. It doesn't divide. 3 also doesn't divide. Does 4 divides? No. क्या 5 divide करता है? Yes, it is. So हम बोल सकते हैं कि 5 is a prime number because there are only 2 divisors, 1 and 5 itself. Alright. ये तो बहुत ही trivial way हो गया. अगर मैं इस चीज़ को extend करूँ for n, that is if I want to find the prime number, if I want to check whether n is prime or not, तो मैं क्या करूँगा? 1 से शुरू करूँगा, 1 2 3 4 up to n, एक लूप रन करूँगा and I'll check for each and every number whether it divides n or not. और लास्ट में अगर मुझे 1 और n मिला which divides the number, then I can say that n is a prime number. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी? बहुत सिंपल सी है, ऑर्डर ऑफ n, दैट्स लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो क्या हम इसे बेटर कर सकते हैं? आंसर इज यस. नाउ लेट्स सी दैट ऑप्टिमाइज अप्रोच. सो बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी टेल यू अबाउट वन प्रॉपर्टी अबाउट नंबर्स. सो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 128. ओके, नाउ लेट मी लिस्ट डाउन ऑल दी factors for 128 and we'll see the property also. So 1 times 128 yields me 128, right? So let's continue. अच्छा, 2 करेंगे तो कितना होगा? 2 into 64 gives us 128. ओके, 4 के साथ कैसा जाएगा? 4 के साथ होगा 32 times 4 जो होगा 128 दे देगा मैं. ऑल राइट. द फोर्थ फैक्टर विल बी 8 times 16. ओके, सो मैंने सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं. सो इट्स 1 into 128, 2 into 64, 4 into 32 and 8 into 16. ओके, नाउ लेट्स ऑल्सो ट्राई टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 128. सो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूँ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, दैट्स 128, हमें आंसर क्या मिलेगा पता है? 11 पॉइंट समथिंग. सो 11 इज द स्क्वायर रूट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू. सो इफ आई राइट डाउन द स्क्वायर रूट वैल्यू ओवर हियर, यानी कि मैं अगर इस तरह से लिखूँ इसे, सो इफ़ आई राइट 11 इन बिटवीन एंड ड्रॉ लाइन, आप देख सकते हैं मतलब आउट ऑफ दीज टू नंबर्स एक नंबर हमेशा लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n है और एक नंबर हमेशा स्क्वायर रूट से बड़ा है. यहाँ पे स्क्वायर रूट 11 है, देयरफॉर एक नंबर हमेशा 11 से छोटा होने वाला है. सो आप देख सकते हैं सारे जो लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यूज़ हैं दे आर लेस देन 11 एंड ऑन द राइट हैंड साइड दे आर ऑल ग्रेटर देन 11. सो आप एक प्रॉपर्टी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब भी हम प्राइम फैक्टर का पेयर लिखते हैं या एक फैक्टर्स का भी पेयर लिखते हैं, फैक्टर्स में एक वैल्यू हमेशा स्क्वायर रूट से छोटी होती है और एक वैल्यू स्क्वायर रूट से बड़ी होती है. सो व्हाट कैन आई कंक्लूड आउट ऑफ दिस? देयर आर 2 थिंग्स. पहली चीज़ तो ये कि फैक्टर्स अकर इन पेयर हमेशा. यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल फैक्टर विच विल नॉट अकर इन पेयर इवन इफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. लेट्स से 25, तो 25 का जो पेयर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो होंगे 5 into 5, दैट्स 25. सो आप देखेंगे कि 5 भी जो है पेयर अकर हो रहा है विद इटसेल्फ. सो पहली चीज़ तो ये हमने निकाल ली यहाँ पे. दूसरा,
एक नंबर हमेशा उनमें से स्क्वायर रूट के अंडर होगा, यानी कि छोटा होगा उससे, और एक नंबर हमेशा उससे बड़ा होगा। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मुझे कोई नंबर स्क्वायर रूट से छोटा नहीं मिला जो डिवाइड करता है उस नंबर को, देयरफॉर आई विल नॉट फाइंड अ नंबर। इसका मतलब क्या है, आई विल ऑल्सो नॉट फाइंड अ नंबर विच इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट, बिकॉज नंबर्स आर ऑलवेज अकरिंग इन पेयर। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं इसको एक नंबर लाइन में दिखाता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये नंबर लाइन है एंड हियर आई हैव द स्क्वायर रूट नंबर n, और मुझे n को जस्टिफाई करना है वेदर इट्स प्राइम और नॉट। तो अगर मैं सिर्फ स्क्वायर रूट n तक आइट्रेट करूँ इंस्टेड ऑफ आइट्रेटिंग टिल n, इफ आई जस्ट अगर स्क्वायर रूट तक खाली करूँ, अपना लूप चलाऊँ, तो इफ़ आई डोंट फाइंड अ नंबर, लेट्स से मुझे यहाँ पे कोई नंबर मिला ही नहीं, इसका मतलब देन आई एम 100% श्योर कि मुझे स्क्वायर रूट के आगे भी कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर मुझे लेफ्ट साइड कोई नंबर नहीं मिला तो मुझे राइट साइड पे भी कोई नंबर नहीं मिलेगा, बिकॉज दी अकरेंस हैपन्स इन पेयर। सो इसी आइडिया को हम एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ आइट्रेटिंग टिल n, अब हम क्या करेंगे, हम आइट्रेट करेंगे ओनली टिल स्क्वायर रूट ऑफ n, और एक मैसिव रिडक्शन है इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम n डायरेक्टली टू स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, सो अगर मुझे इसका कोड लिखना पड़े तो जस्ट राइट दिस सूडो कोड ओवर हियर। वो कैसा होगा, सिर्फ ऐसा सा होगा, फॉर i इज इक्वल टू 1, हम 1 से शुरू करेंगे, i लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n i प्लस प्लस, हम यहाँ तक लिखने वाले हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इफ़ माई दिस n वैल्यू वेदर दिस इज डिविजिबल बाई i और नॉट। इफ इट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब सिंपल से है कि हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक और नंबर मिल गया अपार्ट फ्रॉम 1 एंड द नंबर इटसेल्फ जो इस नंबर को डिवाइड करता हो, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर एंड देयरफॉर विल रिटर्न अ फॉल्स वैल्यू ओवर हियर। ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होने वाली है, लेट्स सी दैट ऑल्सो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग O ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n, तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। नाउ क्या हम इसे और फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, येस वी कैन डू इट, और ये फाइनल ऑप्टिमाइजेशन है इस पे। सो विल यूज दिस लॉजिक एज अ बेस केस नाउ, और अब हम इसके ऊपर फर्दर ऑप्टिमाइजेशन करने वाले हैं टू मेक आवर एल्गोरिथम रन मोर फास्ट। सो लेट्स सी दैट ऑल्सो। जो प्राइम नंबर्स होते हैं दे ऑलवेज अकर इन दिस फॉर्म, इट इज 6n प्लस और माइनस ऑफ 1, ये फॉर्म है। आई विल राइट एस, सो दिस इज द प्राइम फॉर्म, दैट इज 6n प्लस और माइनस ऑफ 1। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। और लेट्स से आई पुट 1 एज माई n की वैल्यू, तो क्या आएगा, 6 इंटू 1 इज 6, प्लस 1 इज 7 एंड माइनस 1 इज 5, देयरफॉर आई गेट 5 एंड 7। आप देख सकते हैं 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे। लेट्स पुट n की वैल्यू 2 नाउ, व्हाट डू आई गेट, I get as 11 and 13, right? 6 2 is 12, 12 minus 1 is 11 and plus 1 is 13. So आप देख सकते हैं दोनों नंबर प्राइम नंबर है फिर से। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू पुट 3 नाउ, सो 6 3 is 18, इसका मतलब क्या हुआ, 17 इज अगेन अ प्राइम एंड नाउ 18 प्लस 1 करेंगे तो 19 आएगा विच इज अगेन अ प्राइम नंबर, राइट। ओके, नाउ लेट्स एक्सटेंड दिस फर्दर, 4 रखेंगे तो क्या आएगा आंसर, ओके, आई हैव डन द मैथ फॉर यू। 4 रखेंगे तो हमें आएगा 23 एंड 25, that is 23 and 25। ओके, सो होल्ड ऑन, अगर किसी को कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रही है तो जस्ट होल्ड ऑन, आई विल एक्सप्लेन। ओके, नाउ लेट्स पुट 5 एंड लेट्स सी व्हाट डू वी गेट एज एन आउटपुट। जब 5 रखेंगे तो हमें मिलेगा 29 एंड 31 एज द आउटपुट। ओके, लेट्स पुट 6 एंड सी, 6 रखेंगे तो विल गेट 35 एंड 37। सिमिलरली इफ आई पुट 7 एंड 8, क्या क्या आंसर आने वाला है हमको, 41 एंड 43 एंड देन आई विल गेट 47 एंड 49। ओके, सो इसे यहीं एंड करते हैं अब, बिकॉज दिस विल कंटिन्यू फॉर इन्फिनिटी। नाउ लेट्स मेक सम ऑब्जर्वेशन हियर। मैंने कहा कि ये प्राइम फॉर्म है, दैट इज 6n प्लस माइनस 1 इज प्राइम फॉर्म, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये हमेशा हमें प्राइम नंबर जनरेट करके देता है। बट क्या ये एक्सप्रेशन हमेशा जो नंबर जनरेट करता है, क्या ये हमेशा दोनों ही प्राइम होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो 25 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, सो इट इज़ NP, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। बाकी सारे नंबर प्राइम है, ये प्राइम है, ये पेयर प्राइम है, ये भी पेयर प्राइम का है, यहाँ पे सिर्फ ये नंबर प्राइम है, बट दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ पे भी दोनों पेयर प्राइम है, यहाँ पे भी दोनों पेयर प्राइम है, यहाँ पे भी दोनों पेयर प्राइम है, बट हियर अगेन दिस नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर एंड दिस विल कंटिन्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं ये बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट वन नंबर विल बी गारंटीड प्राइम। एक नंबर तो गारंटीड प्राइम होगा ही होगा, दोनों का मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट एक का तो मैं ले सकता हूँ ना।
सो अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं टू फर्दर ऑप्टिमाइज आवर प्रीवियस अप्रोच। देखते हैं कैसे। आई होप आपको ये समझ में आएगा अब तक का। ओके, सो लेट्स सी नाउ। आइडिया क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको। आइडिया बहुत सिंपल सा है। हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे डिवाइड करके उस नंबर को कि वो 2 से डिविजिबल है या फिर 3 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, हम ये श्योर हो जाएंगे क्योंकि 2 एक इवन नंबर है एंड 2 इज द लीस्ट इवन प्राइम नंबर। सो इफ़ यू डिवाइड द नंबर विथ 2, और अगर वो नंबर डिवाइड नहीं होता 2 से, इसका मतलब वो नंबर इवन तो नहीं है। तो देयरफॉर कोई भी दूसरा इवन नंबर भी उसे डिवाइड नहीं कर पाएगा। दैट इज 4, 6, 8, ये कोई नंबर उसे डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा वो। ऑलराइट, ये चीज़ तो पहले हो गई। दूसरा क्या होगा कि हम उसे 3 से डिवाइड करके देख लेंगे। 3 से डिवाइड करने से क्या होगा, 3 अगर उसे डिवाइड नहीं कर रहा तो उसका 3 के कोई भी मल्टीपल भी उसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर 3 डिविजिबल फैक्टर ही नहीं है तो 6 कैन ऑल्सो भी नॉट बी अ फैक्टर फॉर अ नंबर। तो ये चीज़ तो हमने पहले क्लियर कर ली है, सॉर्ट आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, विल स्टार्ट विथ 5। हम 5 से शुरू करेंगे बिकॉज 5 इज प्राइम नंबर। विल स्टार्ट विथ 5 और वहाँ से हम क्या करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट चेकिंग फॉर अदर प्राइम नंबर्स। क्या कोई और प्राइम नंबर तो नहीं है जो मेरे n को डिवाइड कर सकता है। समझते हैं, बोर्ड पे दिखाता हूँ मैं आपको। अप्रोच बहुत ही सिंपल सी है। देखिए, हमने पहले क्या किया, डिवाइड बाय 2 किया। दैट इज आई डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करने से क्या हुआ, सारे इवन नंबर रास्ते से निकल गए। अगर 2 डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब बाकी इवन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब वो नंबर n जो है प्राइम नहीं होगा डेफिनेटली। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो विल डू डिवीजन बाय 3। 3 ने डिवाइड नहीं किया, इसका मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। और अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 के मल्टीपल से भी डिविजिबल नहीं होगा वो, राइट। तो ये भी क्लियर हो गया हमारे यहाँ पे। अब क्या होगा, अब देखिए, इफ़ आई राइट द नंबर्स, लेट्स से 4 से लिखते हैं क्योंकि 2 और 3 से हम चेक कर चुके हैं ना। तो 4, 5, 6, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लिए हैं जस्ट टू इलस्ट्रेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या करेंगे। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये तो हमें पता ही है। हम क्या करेंगे, 5 से शुरू करेंगे। सो दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, अब हम क्या करेंगे ना, 5 से शुरू करेंगे और अब हम चेक करेंगे वेदर इट इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। अगर 5 से डिविजिबल है तो हम तो सीधे बोल सकते हैं कि यार ये प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज देयर इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइडिंग दैट नंबर। इसका मतलब प्राइम नहीं हो सकता, n कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर। तो जब हमने चेक कर लिया 5 से, अगर 5 से डिविजिबल नहीं है, व्हाट आई विल डू इज आई विल नॉट जंप टू 6। क्योंकि 6 से क्यों जंप नहीं करेंगे, बिकॉज 6 से डिविजिबल तभी होता है ना वो अगर वो 2 से और 3 से डिविजिबल होता। बट हमें पता है कि 2 और 3 से तो डिविजिबल है ही नहीं, मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, मतलब यहाँ जाना ही बेकार है। देयर इज नो पॉइंट इन चेकिंग एट 6, राइट। ओके, 7 चेक कर सकते हैं। यस, हम 7 पे चेक करेंगे बिकॉज 7 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर। इसका मतलब हमने यहाँ से जंप किया और यहाँ पे आ गए, तो 7 चेक करेंगे। अगर 7 ने भी डिवाइड नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑन मूविंग टू 8 बिकॉज 8 इज अगेन एन इवन नंबर। और हमें पता है कि हम क्यों 8 पे नहीं जाएंगे, बिकॉज 2 से वो डिविजिबल नहीं है। 9 पे भी नहीं जाएंगे बिकॉज वो 3 से डिविजिबल नहीं है। और n इज नॉट डिविजिबल विथ 3, तो 9 पे जाने का कोई मतलब नहीं है। ओके, क्या 10 पे है, 10 इज अगेन इवन नंबर, तो स्किप कर दो। 11 पे जाएंगे। 11 पे हम जंप इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि 11 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर। हमें पता है कि 11 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर। सो जब हम 11 पे आ गए, हम 11 से चेक करेंगे कि 11 डिवाइड कर रहा है क्या उस नंबर को, नहीं कर रहा। लेट्स से अगर वो नहीं करता तो क्या होगा, इसका मतलब हम और आगे बढ़ेंगे। अगर वो डिवाइड कर देता तो ऑब्वियसली वी कैन कंक्लूड देयर इटसेल्फ, वी कैन ब्रेक आवर लूप एंड से दैट ओके दिस n इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज अपार्ट फ्रॉम 1 and n itself there is another number which divides that number which is 11 here in this case. Now let's assume that 11 में उसे डिवाइड नहीं करता तो क्या करेंगे, देन 12 पे नहीं जाएंगे, इवन है। 13 पे जाएंगे। So 12 पे नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स इवन नंबर। तो नाउ विल जंप ऑन 13 बिकॉज 13 इज अगेन अ प्राइम नंबर। फिर से चेक करेंगे क्या 13 डिवाइड कर रहा है उसे, नहीं कर रहा। अगर नहीं करता तो क्या करेंगे, विल मूव फॉरवर्ड। 14 पे नहीं जाएंगे, 15 पे नहीं जाएंगे, 16 पे नहीं जाएंगे, राइट। हम डायरेक्टली 17 पे जंप करेंगे। सो फ्रॉम 13 विल डायरेक्टली मूव टू दिस प्लेस क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। अगर इसने भी डिवाइड नहीं किया तो 18 चेक करने का कोई मतलब नहीं है, 19। तो हम डायरेक्टली यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएंगे बिकॉज 19 इज अगेन अ प्राइम नंबर। अगर 19 ने भी डिवाइड नहीं किया उसे तो ये बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है एंड सो ऑन। जैसे 23 है अब नेक्स्ट, तो 23 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर, देयरफॉर फ्रॉम 19 विल डायरेक्टली जंप टू 23 नाउ। और 23 को चेक करेंगे एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। कहाँ तक कंटिन्यू होगी वो समझते हैं।
ऑब्वियसली बात है, जो हमने देखा था प्रीवियस मेथड में वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ एन तक, राइट। ये मेथड हम कंटिन्यू करते जाएंगे टिल स्क्वायर रूट ऑफ एन तक ना पहुंच जाए, बिकॉज एज ए सेड जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं ना वो पेयर्स में कर होते हैं। तो अगर हमें स्क्वायर रूट एन तक कोई नंबर नहीं मिला, इसका मतलब स्क्वायर रूट के आगे भी कोई नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो स्क्वायर रूट एन इज सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन टू कंक्लूड दैट ओके एक नंबर प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों हम प्राइम्स पे जंप कर रहे हैं खाली। सो वी आर जस्ट वी आर हॉपिंग ओवर द प्राइम नंबर्स टू चेक वेदर दोज नंबर्स डिवाइड द ओरिजिनल नंबर एन और नॉट, बस इतना सा कर रहे हैं हम, ओके। तो हम ये हॉप कैसे कर रहे हैं, टू हॉप ऑन दीज प्राइम नंबर्स हम क्या कर रहे हैं ना, हम इस प्राइम फॉर्म वाले या यूजिंग दिस एक्सप्रेशन टू जनरेट दीज नंबर्स जिस पर हम ताकि हम जंप कर पाएँ, ठीक है। सो लेट्स सी, हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप ले रहे हैं जहाँ मेरा आई जो है ना वो 5 से शुरू होगा, ऑल राइट। और हम क्या करेंगे, हमारा जो आई है डेफिनेटली वो जो है ना स्क्वायर रूट ऑफ एन तक रन होने वाला है, ये तो हमें पता ही है। और अब आई जो है ना हमारा +6 होगा। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, लेट मी राइट द कोड फर्स्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ ना, आई कैन सिंपली रिटर्न अ फॉल्स वैल्यू स्टेटिंग दैट नंबर n गॉट डिवाइडेड बाय अनदर प्राइम नंबर, ठीक है। दिस इज द फॉर लूप, बहुत सिंपल सा है। और अगर ऐसा नहीं होता दैट मीन्स इफ आई एम नॉट रिटर्निंग एनी फॉल्स वैल्यू फ्रॉम विद इन दिस फॉर लूप, इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं था अंडर रूट n जो उसे डिवाइड कर पाया। इसका मतलब क्या है, आई कैन कंक्लूड दैट माई नंबर इज प्राइम नंबर, देयरफॉर नाउ आई कैन रिटर्न ट्रू stating that my number n is a prime number. Okay, now let's try to decode this if condition. Okay, so मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं 5 पे खड़ा हूँ। अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे, यहाँ एक्सप्रेशन पे क्या है ना, लेट मी चेंज द पेज, यहाँ देखते हैं। सो लेट्स सी नाउ, आइडियली क्या हो रहा था, इफ आई ड्रॉ द नंबर लाइन, मैं क्या कर रहा हूँ ना यहाँ पे 6 पे खड़ा हो जाता हूँ जाके, और मैं एक नंबर लेस करके देखता हूँ, दैट इज -1 करता हूँ तो मेरे को मिलता है 5, और फिर मैं क्या करता हूँ +1 करता हूँ विच इज़ 7। तो जब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ और फिर मैं पीछे देखता हूँ और फिर एक बार आगे देखता हूँ, एंड आई चेक वेदर दिस नंबर इज प्राइम एंड दिस नंबर इज प्राइम, ओके। सो इसके बाद क्या करता हूँ मैं, आई विल मेक अ जंप ऑन 12, बिकॉज इफ आई पुट वैल्यू ऑफ n as 2, दिस इज 12। अगर मैं सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखूँ, ये 12 है और ये +or-1 है। सो मैंने जंप किया 12 के ऊपर, अब मैंने एक माइनस किया तो आई गेट 11, एंड एक जब मैंने प्लस किया तो आई गेट 13। सो दिस 11 and 13 आर अगेन प्राइम नंबर्स। देन व्हाट आई डू इज आई विल मेक अनदर जंप। अब जब मैं जंप करूँगा आई विल कम ऑन 18, एक माइनस किया तो 17 आया और एक प्लस किया तो आई गेट 19। अगेन दीज टू नंबर्स आर प्राइम नंबर। तो ये तो हमारा प्राइम फॉर्म जनरेट करके दे रहा है हमें। बट कोड में क्या कर रहा हूँ ना, मैं कोड में इस तरह से नहीं कर रहा, कोड में मैंने स्लाइट मॉडिफिकेशन कर रखी है। इसका एक रीज़न है, आप चाहे तो ये इसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, नो इश्यूज़, बट कोड में मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया वो समझते हैं। कोड में क्या कर रहा हूँ ना, इंस्टेड ऑफ जंपिंग ऑन 6, 12, 18, मैं क्या कर रहा हूँ ना, आई एम स्टार्टिंग विथ 5 इटसेल्फ, क्योंकि मुझे पता है 5 इज़ अ प्राइम नंबर, सो दिस इज़ अ प्राइम नंबर, आई नो दिस थिंग, ठीक है। सो आइडिया क्या है, सी 6 पे जब हम जंप किए तो मुझे क्या करना पड़ रहा है ना, एक नंबर पीछे देखना पड़ रहा है और एक नंबर आगे देखना पड़ रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। सिमिलरली व्हेन आई एम जंपिंग ऑन 12 पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक नंबर पीछे देख रहा हूँ और एक नंबर आगे देख रहा हूँ। सो दिस इज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रही है यहाँ पे मेरी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है बट स्टिल इट इज़ देयर, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टार्ट विथ 5 इटसेल्फ, क्योंकि 5 क्या है ना, सबसे लोवेस्ट नंबर है इस पूरी सीरीज में। या मुझे तो सारे जो नंबर्स में लिस्ट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 5 है, तो मैं 5 से शुरू करता हूँ। लेट मी स्टार्ट विद दिस एज माई स्टार्टिंग पॉइंट इंस्टेड ऑफ 6। अब मैं क्या करूँगा ना, 5 में +2 करके देखता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे +2 करूँ, आई लैंड अप ऑन 7 विच इज़ अगेन अ प्राइम नंबर, ओके। मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, 5 से ना डायरेक्टली जंप करूँगा टू 11। सो मैंने यहाँ से जंप लिया और मैं 11 पे आ गया, लैंड अप हो गया। तो ये जंप कितना बड़ा आ गया, +6 का जंप है यहाँ पे। जब मैंने +6 का जंप लिया तो मैं 11 पे लैंड हुआ। ना 11 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अब मैं क्या करूँगा, इसमें +2 का जंप करके आई लैंड अप ऑन 13 विच इज़ अ प्राइम नंबर अगेन, ओके। नाउ 11 से क्या करेंगे ना, हम फिर से +6 का जंप लेंगे। सो इफ आई टेक अ +6 जंप तो आई लैंड अप ऑन 17 विच इज़ अगेन अ प्राइम नंबर। और इसमें अगर मैं +2 का जंप लूँगा तो आई लैंड अप ऑन 19 विच इज़ अगेन अ प्राइम नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जंप लूँ +6 का तो मैं कहाँ पे लैंड अप करूँगा, आई लैंड अप ऑन 23 विच इज़ अ प्राइम नंबर।
एंड अगेन ऑन दिस इफ आई ऐड 2 numbers प्लस 2 करूँगा तो आई लैंड अपॉन 25 विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. तो ये प्राइम नंबर नहीं है, बट द आइडिया इज सेम और ये कंटिन्यू होता रहेगा. ठीक है. तो जो मैं पहले इससे जनरेट कर रहा था ना, सेम चीज़ मैं इससे भी जनरेट कर पा रहा हूँ. दैट इज आई एम जस्ट लैंडिंग ऑन प्राइम नंबर्स. बट यहाँ पर क्या है, इन द सेकंड अप्रोच, ये जो सेकंड अप्रोच है ना मेरी, इसमें क्या हो रहा है, आई एम नॉट डूइंग दैट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्राइम से शुरू कर रहा हूँ एंड जितने जंप्स करते जा रहा हूँ आई एम मेकिंग श्योर दैट एटलीस्ट एक जंप जो हो उनमें से वो एक प्राइम नंबर ही हो. सो 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25 ये सब ऐसे जंप्स लेते जा रहा हूँ मैं. सो ये आइडिया मैंने अपने कोड में लिखा है. ठीक है. आप चाहे तो पहला अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आंसर विल बी द सेम. ठीक है. ओके. अगर आपको ये अप्रोच समझ में आ गई ना तो आपको कोड बहुत आसानी से समझ में आएगा, बिकॉज कोड क्या है, सिर्फ इसका इंप्लीमेंटेशन है. सो लेट्स सी द कोड नाउ. मैं यहाँ पे अपने न्यूटन स्कूल के आईडी में आ चुका हूँ. नाउ लेट्स सी. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लिख रखा है टू चेक फॉर द प्राइम नंबर, और मैंने यहाँ पे सबसे ऑप्टिमाइज वर्जन इंप्लीमेंट कर रखा है. नाउ लेट्स सी. सबसे पहले तो हम चेक कर रहे हैं कि num इज लेस देन और इक्वल टू 1 और नॉट. अगर ऐसा है तो रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो हैंडलिंग द एज केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स. अगर मान लो मेरा प्रोग्राम नेगेटिव नंबर्स को पास इन करता है, सो आई सिंपली रिटर्न फॉल्स बिकॉज दैट कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर. ऑल राइट. सो वंस दिस इज डन, नाउ आई विल चेक वेदर द नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 3, बिकॉज हम 1 से लेस तो चेक कर चुके हैं और 1 को भी चेक कर चुके हैं, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी प्राइम नंबर. सो 2 और 3 को ये हैंडल कर रहा है. सो इफ द नंबर इज 2 और 3 देन द आंसर इज ट्रू. इन द थर्ड केस में क्या कर रहा हूँ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 को 2 से और 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, एंड आई एम चेकिंग वेदर दीज 2 numbers डिवाइड और नॉट. इफ दे डिवाइड विल रिटर्न अ फॉल्स. नाउ दिस इज द मेन क्रक्स जो मैंने अपनी बोर्ड पे एक्सप्लेन किया. मैंने आई को 5 से शुरू किया और आई को मैं स्क्वायर रूट ऑफ नम तक रन कर रहा हूँ. नाउ यू नो द रीजन व्हाई आई एम डूइंग टिल स्क्वायर रूट ऑफ n. और हम आई को 6 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सो दैट विल मेक श्योर दैट सो वी आर जंपिंग ऑन ओनली प्राइम नंबर्स पे जंप कर रहे हैं हम लोग. And I am checking whether if my num is modulo with I, if it is, or if it is modulo with I plus 2. इन दोनों ही केस में अगर ऐसा होता है तो we'll return a false, else we're going to return a true. ठीक है. So this is what is the idea of this program. So let me run the code and see what is the output now. As you can see it is 1. इसका मतलब क्या है? It is a prime number. 17 is a prime number. ठीक है ना. So let's see for 99. It's 0. 99 is not a prime number because 3 divides 99. ठीक है. सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ रही होगी. व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस अप्रोच, देखते हैं वो भी एक बार. अगर आप देखें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n ही होने वाली है. तो टाइम, अब बोलेंगे यार इसमें फिर ऑप्टिमाइज क्या हुआ. सी थियोरेटिकल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यही रहने वाली है. दिस इज द एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, राइट. सो ये तो स्क्वायर रूट ऑफ n ही रहेगी. बट ड्यू टू दिस ऑप्टिमाइजेशन जहाँ पे हम सिर्फ प्राइम नंबर्स पे जंप कर रहे हैं इन ऑर्डर टू चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट, ये क्या कर रहा है, बहुत स्पीड अप कर देता है इस प्रोसेस. सो जो रनिंग स्पीड है इस एल्गोरिदम की वो बहुत फास्ट है कंपेयर टू द नाइव स्क्वायर रूट एल्गोरिदम. ठीक है. सो दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज वर्जन फॉर दिस एल्गोरिदम. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से. भाई मजा आया. बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो लेट मी टॉक अबाउट न्यूटन स्कूल लॉन्चपैड. ये एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू गेट ऑल दीज 5 बेनिफिट्स. सो न्यूटन स्कूल जो है वो आपको जॉब रेडी बनाता है बिकॉज ऑल द कोर्सेज आर इंडस्ट्री रेलेवेंट और कोई फालतू की चीज़ नहीं है यहाँ पे. इट इज़ अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. ऑब्वियसली एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट अंटिल एंड अनलेस यू गेट प्लेस्ड विद अ मिनिमम ऑफ 5 लाख CTC. इट इज़ अ सेल्फ पेस्ड कोर्स. आप अपनी स्पीड से और अपने मन मुताबिक पढ़ सकते हैं. सो इट रिक्वायर्स 0 सेटअप. व्हाट डज इट मीन, मतलब आपको ना कोई कोड स्टूडियो इंस्टॉल करने की जरूरत है ना कोई IDE. सब कुछ इनके ब्राउजर प्लगइन के थ्रू आप वेब में ही एक्सेस कर सकते हैं. सो it makes things very hassle free. They have got doubt solving platform. For every video or every concept which you learn on the platform, you have a doubt solving, so you can post a doubt there and the experts will get back in touch with you within 24 hours and clear all your doubts. So